Hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that we are having at 3 p.m. the Hindu analysis. Today is 4th January and we are here with the Hindu analysis of 4th January. Okay. देखो संडे को जो है ना द हिंदू एडिटोरियल में एडिटोरियल्स नहीं आते, ठीक है. सो संडे को वी विल बी हैविंग क्लास ऑन इसरो, ऑल अबाउट इसरो. इसरो काफी न्यूज में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सो टुमारो एट 3 p.m. we will be having a class on that. Okay. So let us begin with today's class. आज 4th January है, that is Saturday, and here we are with the Hindu analysis. तो first page में एक article थी. There are two articles on the first page. The first one was talking about India protests China's new counties in Ladakh, and the second article is new draft policy is worse than 3 repealed farm laws. देखो ये कोट में, देखो सिंगल कोट लिखा है ना, इसका मतलब ये किसी का ओपिनियन है. Okay. So this is how you are supposed to read that. Okay, so when we read the article, we will get to know that this is an opinion of which person or organization. Okay, so let us begin. Am I audible, visible? Everything is fine? Yes, good afternoon, Priyanshi, Safi, Nomani, good afternoon. Am I audible, visible? Yes. Okay, so let us begin. India protests China's new counties in Ladakh. Okay, so what happened is, first of all, we have to understand Beijing forms, Beijing was the capital of China. Beijing here is referring to China or the Chinese government. Forms 2 new counties in Hotan prefecture that incorporates the Dakhi territory. The Ministry of External Affairs says never accepted illegal Chinese occupation, raises concern over dam project as well. तो पहले हम लोग होतान prefecture समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे counties. Okay, so first of all, you can see here is China, here is India. Now, I hope you are aware. अगर आपने पढ़ा होगा past में, so you must be aware that this region is called as Aksai Chin, which is a part of India, and it has been illegally occupied by China and all. Although we actually say, like, we believe that this is our integral part, and the government has clearly said many times. तो यहीं पर एक प्रीफेक्चर है, उनका प्रीफेक्चर होतान प्रीफेक्चर. तो प्रीफेक्चर मतलब होता है समथिंग लाइक यू कैन से एक तरह का प्रोविंस समझ लो. सो दे आर एक्चुअली डिवाइडिंग दैट प्रोविंस. होतान प्रीफेक्चर दे आर डिवाइडिंग इट इनटू काउंटीज. काउंटीज मतलब होगा समथिंग सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है एक्चुअली. सो आप ये समझ लो, लाइक सेइंग कि मान लो समवेयर हियर इज होतान prefecture, and they are dividing this into 2 counties. So counties, prefecture India में नहीं यूज किया था ये term, but just for understanding purpose you can understand कि prefecture is something similar to like a state in India. जैसे states होता है ना, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, like that. Counties are something similar to district कह सकते हैं, bigger than district. ठीक है, ठीक है. तो उसमें जब मैप निकाला, so they have made a map in such a way, so as in such a way that they are claiming that this region of Aksai Chin is the part of China. Okay, तो जब ऐसा हुआ तो फिर इंडिया ने प्रोटेस्ट इशू किया. So we accepted, है ना. So Ministry of External Affairs has officially said, has lodged a solemn protest with China over formation of 2 counties in the Hotan prefecture incorporates India's Ladakh territory. So I hope you are aware this is called as Ladakh Union Territory. ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है. तो ये वाला जो है, this is actually the Aksai Chin region. So we believe that this is an integral part of India. So when they actually came up with the map, when the China came up with the map of Hotan prefecture dividing into 2 counties, they made a map in such a way so as to claim that Aksai Chin is their part. So that is why India officially issued the statement that we actually have never accepted illegally Chinese occupation. Speaking to reporters, the Ministry of External Affairs spokesperson Mr. Randhir Jaiswal reminded China that India never accepted Beijing's illegal occupation. यानी जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, इनका नाम याद रखिएगा, मिस्टर रणधीर जायसवाल. इन्होंने साफ ही चाइना को कहा कि इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है वो जो बीजिंग ने लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है. एक तो ये बात हुई. दूसरा है concerns over dam project as well. तो one thing that we raised is on this issue that China has divided Hotan prefecture in 2 counties
उसके लिए we had raised issues because they are claiming that Aksai chain is their part. Second thing is dam. अगर आप देखोगे, he further stated categorically that India has also conveyed its concern about building a mega hydroelectric power project in Yarlung Sangpo, which is the Tibetan name of Brahmaputra, which crosses through Arunachal and Assam. देखो, there is a river. First of all, let me show. हाँ, यहाँ पे देखो, there's a river which comes like this, takes a U-turn and goes like this. Which river is being talked about? So इसको जो है थोड़ा सा ऊपर बना दिया, I think ऐसा कुछ होगा, something. This is Yarlung Sangpo. Okay, तो चाइना में, और एक्चुअली इट्स अ तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, सो इट इज कॉल्ड एज यारलंग सांगपो इन असम. यहाँ पर असम देखो, ये अरुणाचल, AR मींस अरुणाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल. दिस इज असम, ठीक है. तो अरुणाचल और असम से गुजरती है. असम में इसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर. दिस इज कॉल्ड एज, लेट मी राइट विद सम अदर पेन. असम में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर से जानते हैं. यस यस प्रियांशी गोयल, राइट. हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर. और अरुणाचल में उसको तीसरा नाम सियांग वगैरह लिखते हैं, ठीक है ना. सो दैट डिफरेंट नेम्स. आई थिंक इन अरुणाचल इट इज कॉल्ड एज सियांग रिवर, ऐसे भी लिखते हैं. पर सियांग इज वेरी लेस फेमस, तो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. इंडिया में जनरली उसको ब्रह्मपुत्र रिवर से जानते हैं. ओके, सो उस पे लोग जो है, चाइना इज मेकिंग डैम. मान लो समवेयर हियर, मान लीजिए लेट्स से दे आर मेकिंग अ डैम, बहुत बड़ा लेवल का. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो डैम बनाना क्यों समस्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद डैम? कैन यू प्लीज टेल मी एनीवन? अगर रिवर है और इस मान लो समवेयर है डैम बनाया जा रहा है, मान लो कहीं पे, यहाँ पे कई सारा प्लान है, लेकिन एक मान लो यहाँ पे डैम बनाया जा रहा है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो डैम से क्या होता है? हाँ, दिहांग भी कहते हैं. यस, यू आर राइट. खैर, ब्रह्मपुत्र को. सो डैम से एक प्रॉब्लम क्या है? ऐसे स्टॉप्स वाटर. एक तो ये प्रॉब्लम होती है, मेन चीज ये होती है, पानी रोक देगा. हो सकता है उसे वाटर, फ्यूचर में वाटर शॉर्टेज हो जाए इन इंडिया. दूसरी बात क्या होता है, डैम से प्रॉब्लम क्या होता है? अब्रप्ट फ्लड्स भी आने का डर होता है. क्यों? फॉर एग्जांपल, डैम पे वाटर ज्यादा चढ़ गया, एक बैक सडनली गेट ओपन, सो इफ द चाइना ओपन्स द गेट, इट विल कॉज फ्लड इन द लोअर रीजन्स. यस यस प्रियांशी गोयल, वेरी गुड. हाँ, सो इट कैन कॉज फ्लड. तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस. मान लो यहाँ पे से बहुत सारा मैरीन एनिमल होगा, फिश होगा, मान लो यहाँ से फिश है और बहुत सारी चीज आता होगा, तो यहाँ पे आकर ब्लॉक हो जाएगा ना, वो फिश यहाँ पर नहीं आ पाएगा. सो इट विल कॉज डैमेज टू फिशिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, इन अरुणाचल असम रीजन. क्योंकि सारे फिश आ रहे थे, वो डैम से रुक जाएंगे, वहां पास नहीं करेंगे. ओके, और भी बहुत सारी चीज होती है. मतलब डैम इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ लॉट ऑफ, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अगर इन्वायरमेंटलिस्ट से पूछोगे, सो दे विल ऑलवेज क्रिटिसाइज द डैम कि नहीं, डैम बहुत नुकसानदेह होता है. So, है जैसे water stoppage, it may cause drought, it may cause flood, it may cause biodiversity loss, it will impact fishing industry, etc., etc. And there are many reasons. तो इसीलिए इंडिया ने प्लस, जब इंटरनेशनल रिवर होती है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही है, तब तो आपको दोनों की सहमति लेनी चाहिए, है ना भाई. और अदरवाइज अलाउ द नेचुरल फ्लो. जो नेचुरल फ्लोस को आप अलाउ कीजिए, जो जिसको पानी मिल रहा है, जिसकी किस्मत में वो मिलेगा. सो इफ यू आर स्टॉपिंग इट, देन ऑफ कोर्स वी हैव इश्यूज, है ना. तो ये बता रहे हैं. So that is what India has raised the concern also. India ने convey किया है, government of India has raised this concern also to China that you are making this big project and all, and which might impact us and all. ठीक है. So यही था आज के आर्टिकल फर्स्ट पेज में. ठीक है. हाँ, अब ये important क्यों है? You have to understand this. Now why it is important? Why I'm saying it? Because recently, few days back, we had seen the meeting of National Security Advisor of India, Mr. Ajit Doval, with Chinese Foreign Minister Mr. Wang Yi. तो जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स कहते हैं, जिसमें इंडिया के एनएसए जो थे, उन्होंने मुलाकात की थी फाइनेंस मिनिस्टर से. सो ऐसा उम्मीद किया जा रहा था, लाइक ना, देखो 18 दिसंबर की न्यूज़ है. हियर इज मिस्टर अजित डोवाल, इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड हियर इज मिस्टर वांग यी, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना. तो जब मुलाकात की थी, तो देयर वर एक्चुअली न्यूज़ दैट वी माइट रिस्टोर, देयर वर सम पॉजिटिव न्यूज़ दैट वर कमिंग इन. इधर 2-3 महीना में ऐसा लग रहा था that there is some positive news regarding what we call it as improvement in relation with China. ऐसा उम्मीद किया जा रहा था. लेकिन जब ऐसी बात आई, तो अब जो है now actually this question is being raised, है ना.
तो अब देखते हैं, लेट अस सी व्हाट विल हैपन फर्दर, लेकिन फिलहाल ये आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट। नाउ एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरे को हम लोग एलएसी कहते हैं ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, and this is Aksai chain, which we believe that it is our integral part. It's an integral part of India. तो एक बार क्वेश्चन आया था क्लैट में, एलएसी की लेंथ कितना है, प्लीज टेल मी। And when we are saying it from our perspective, means according to the Ministry of Home Affairs. What is the length of LAC in India? Length of LAC in India, according to Home Ministry of India. This is a previous year question. Yes, Nigar Fatma, you're right. 3488 kilometers. Although China का claim है कि 2000 kilometers something like that है, but we should follow our report, है ना? So this is the official our length. Our Ministry of Home Affairs report says that we are having 3488 kilometer of LAC length. ये पता होना चाहिए, ठीक है। अराउंड में प्रियंशी आप ठीक है, लेकिन आप पूरा याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही आया था, एग्जैक्ट नंबर था 3488, एक में 200 2700 था, इस तरह का 3-4 ऑप्शन था। तो इट्स बेटर दैट यू शुड रिमेंबर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन अ पीवाईक्यू ऑन दिस, ठीक है। नाउ फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल थी, न्यू ड्राफ्ट पॉलिसीज वर्स देन 3 रिपील्ड फार्म लॉज। अब देखो ये कोर्ट में, इसका मतलब है कि ये किसी का ओपिनियन है, ओके। तो इसमें बात क्या हो रही है कि सो देयर इज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज प्रोटेस्टिंग, आई होप यू आर अवेयर, संयुक्त किसान मोर्चा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया भी, इफ यू आर वाचिंग माय क्लास फॉर द पास्ट 2-3-4 डेज, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन कि संयुक्त किसान मोर्चा मतलब एक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, व्हिच आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्म लॉज एंड ऑल। आई मीन दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, प्लस दे आर आस्किंग फॉर फार्म लोन वेवर एटसेट्रा। और लोग बताया भी कि दे आर व्हेन दे आर सेइंग एमएसपी दे आर आस्किंग फॉर C2 plus 50% फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय व्हिच कमिटी? I have discussed many times, and it is a previous year question also. The farmers are demanding C2 plus 50% formula. It is given by which committee? बताइए, मैंने कई बार डिस्कशन करा है। So I believe that you should be knowing. Yes, Mr. MS Swaminathan committee. Yes, MS Swaminathan committee. Right, very good. Nigar, Fatima, and Tenma, Kenzu, you both are right. Okay. And Mr. MS Swaminathan is considered as father of green revolution in India. Father of green revolution in India. Yes, Priyanshi Goel, very good. Sir, this is my first class. Okay, welcome Mannat Kaur in your first class. Generally, actually, you should be knowing that generally at 3 p.m. we are having the Hindu analysis on this YouTube channel. Sunday ko jo hai, there is no editorial, so we discuss some important classes. जैसे कल ISRO की क्लास होगी 3 p.m. पर about ISRO. So do join me there also. ठीक है? Okay, fine. So we were discussing about this. कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट कर रही, they are protesting that there should be a legal guarantee for MSP and there should be 50% formula as recommended by MS Swaminathan committee. तो इसी ने अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इशू किया है, ठीक है, रिलीज किया, मतलब ड्राफ्ट में है अभी, इसको फाइनल पॉलिसी इज नॉट फाइनल बट इट इज पुट इन पब्लिक डोमेन टू आस्क फॉर द ओपिनियन. So this farmer organization Samyukt Kisan Morcha has said that this policy is very bad, I'm not happy and all etc. तो उन लोगों ने कहा है कि वो इस पॉलिसी से खुश नहीं है, ये जो पहले जो 3 फार्म लॉज है उससे भी बुरा है, अकॉर्डिंग टू दिस farm body or agriculture peasant body. This draft that the government has recommended is actually not very good. That is what they have said. अब देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, when we are talking about agriculture, the most important thing is who is the Minister of Agriculture. So actually the Minister of Agriculture is Mr. Shivraj Singh Chauhan, Minister of Agriculture and Farmer Welfare. अच्छा, कुछ लोग पूछे सर C2 plus 50% फॉर्मूला. अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो प्रियंशी, this is our YouTube channel.
सब्सक्राइब कर लेना, लाइव सेक्शन पे जाना, और नीचे क्लास है 31 दिसंबर की, ठीक है। उसके शुरू के 5 to 10 मिनट से मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यू विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट C2 प्लस 50% फॉर्मूला। ये MSP का एक्चुअली क्या है कि नहीं तुमको पूरा डिटेल बताना होगा। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, एक होता है A2, एक FL और एक C2 होता है, ठीक है। तो C2 में A2 प्लस FL सब आ जाता है, A2 प्लस FL सब आ जाता है। अब A2 क्या है, FL क्या है? FL मतलब फैमिली लेबर, और A2 में जितने भी कॉस्ट्स हैं, जैसे इनपुट कॉस्ट, सीड कॉस्ट एटसेट्रा, है ना। A2 प्लस FL, C2 में और भी चीज आती है, जैसे प्लस रेंट्स, रेंट ऑफ द लैंड, ठीक है। सो लेट मी राइट लाइक दिस, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। C2 मतलब A2 प्लस FL प्लस लैंड रेट, ऐसे समझ लो। A2 मतलब क्या हुआ, जो भी खर्चा हुआ, जैसे सीड में इन्वेस्टमेंट हुआ, फर्टिलाइजर में लगा, इरिगेशन में जो खर्चा हुआ। FL मतलब फैमिली लेबर, यानी फैमिली के 5 लोगों ने काम किया, so उसका आप सैलरी तो नहीं काउंट करोगे, लेकिन अगर इफ दे वर पेड तो उनका कुछ कैलकुलेशन होता है। अगर किसी और के फील्ड में काम करते तो वो भी कैलकुलेट करना। लैंड रेट का मतलब है कि अगर आप उस एग्रीकल्चर फील्ड में, आप उस एग्रीकल्चर फील्ड को किसी और को रेंट पर दे देते तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता। सो यू कैन कैलकुलेट ऑल दीस थ्री, उसको C2 कहते हैं। तो मान लो C2 कैलकुलेट होकर 100 रुपया आया पर केजी ऑफ राइस, तो सरकार इनकी MS स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था C2 प्लस 50%, यानी 100 रुपीज प्लस 50 रुपीज, यानी 150 रुपी पर केजी जो है वो राइस का MSP होना चाहिए। दैट इज हाउ। वैसे मैंने डिटेल में बताया है, आप 31 दिसंबर की क्लास देख लेना। एक क्लास ये देख लेना, जो लोग नए लोग हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, वॉच 31 दिसंबर क्लास, एंड ये डॉक्टर मनमोहन सिंह पे मैंने क्लास ली थी, ये देख लीजिएगा। सो दीज 2 क्लास प्लीज वॉच इट, बिकॉज रिसेंटली डॉक्टर मनमोहन सिंह डाइड, एंड उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें न्यूज में थी, which may be asked in the upcoming exams, so you should be knowing it, ठीक है। खैर, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल थे, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मॉनिटर्स HMPV आउटब्रेक इन चाइना, एश्योर सिचुएशन इज नॉट वरीसम। सबसे पहले आप ये बताइए कि हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज मिनिस्ट्रीज आर आस्क्ड इन एग्जाम। अभी 2021 क्लैट ने पूछा भी था। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये है पूरी मिनिस्ट्री का नाम। हु इज द मिनिस्टर? तो बताइए जा रहा है कि एक वायरस है चाइना में जो है HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन चाइना, और ये कहा जा रहा है कि ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस, अगेन समथिंग सिमिलर टू सांस वाली बीमारी, जैसे कोविड कैसे था, सांस लेने में इशू हो रही थी, देयर वर इश्यूज विद व्हिच वर डैमेजिंग लंग्स, और लाइक फॉर लाइक ब्रेथ इश्यूज था, है ना, सांस लेने में तकलीफ। तो समथिंग सिमिलर टू दैट दिस डिजीज इज, लेकिन अभी जो है बहुत सीरियस इशू नहीं है इसमें, जैसे होल हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी वरीसम बात नहीं है, इतना ही परेशान होने का नहीं है, बट द हेल्थ मिनिस्ट्री इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन। यस, मिस्टर JP नड्डा इज द हेल्थ मिनिस्टर, वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने लिखा। इज ऑल्सो द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ BJP, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, गुड, बहुत सारे लोगों ने लिखा JP नड्डा, वेरी गुड। तो ये हो गया, है ना। तो इंडिया ने अभी ऐसा कुछ स्पाइक्स वगैरह देखा नहीं है HMPV का, बट गवर्नमेंट जो है, मतलब होल हेल्थ मिनिस्ट्री ध्यान दे रही है कि कहीं कुछ, मतलब if there is any sudden rise, then the government will issue some orders and all, or advisory. खैर, ये 5 years after COVID ये सब न्यूज में आ रहा है अगेन, खास करके 14 साल के अंदर के बच्चों में देखा गया। मींस दिस टाइप ऑफ वायरस is like harming more the child, like less than 14 years. The symptoms में cough, fever, shortness of breath, potential complications like bronchitis, pneumonia, ये सब वही सांस लेने से रिलेटेड है, कि खांसी होगा, फीवर होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। bronchitis is also related with lungs issues, pneumonia and all. So that is what is being talked about here. So let us see कि आगे क्या होता है ना। Meanwhile, Director General of Health Services, Mr. Atul Goyal has said no case of respiratory illness HMV has been reported in the country. अभी तक इंडिया में HMPV का कोई केस नहीं देखा गया है, तो इतनी भी मतलब परेशान होने की नहीं है। HMPV is like any other respiratory virus that causes flu-like symptoms, adding that respiratory illness are common in winters and hospitals in India are equipped to deal with it. तो उन्होंने ये कहा कि इतना है ना, नो कॉज ऑफ अलार्म, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होने का है। ठंड में जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के इश्यूज, ठीक है, तो वी नीड नॉट टू पैनिक मच। सो दैट इज व्हाट मिस्टर अतुल गोयल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैज सेड, ठीक है, ओके, ठीक है। स्पेशल मेडिसिन आर नॉट नीडेड, कोई खास स्पेशल मेडिसिन होती हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीवायरल ड्रग है, इन एंटीवायरल मेडिसिन से उससे काम चल जाएगा।
are not needed as there are no antiviral drugs against this and all. There are no major cases. मतलब वही बता रहे हैं कि कहने का ये मतलब है कि we need not to panic much. We have enough things to actually handle it. खैर, okay. तो इसके बारे में आई जस्ट ओपन द विकिपीडिया, तो मेरे को कुछ मिला, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा. जैसे HMPV के बारे में पढ़िएगा. इट्स अ नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस. 2001 में नेदरलैंड में सबसे पहले देखा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. और जैसा लिखा ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस, यानी सांस लेने में इश्यूज होते हैं बच्चे को खास करके. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर. नाउ एक और चीज है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. एक्चुअली हुआ ये था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना. I hope you are aware the Bhopal gas tragedy happened on 2nd December 1984 in Bhopal, which is a place in Madhya Pradesh. तो 2nd December को we observe as National Pollution Control Day. इसीलिए उसी दिन मनाया जाता है. मनाया तो जाता है, मनाना वर्ड नहीं लिखना चाहिए, ऑब्जर्व लिखना चाहिए. नहीं, ऑब्जर्व नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे. नाउ ये हुआ ये था कि यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, उसमें से एक गैस लीक हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसकी वजह से मेनी पीपल डाइड एंड ऑल. आई होप यू आर अवेयर. तो उसका वेस्ट जो है ना, 40 ईयर 40 साल से पड़ा हुआ था, आज रिमूव किया गया और दूसरी जगह ले जाया गया. सो इट वाज एक्चुअली है ना, तो उसमें ना लोगों ने प्रोटेस्ट किया जो दूसरी जगह ले जाएगा. आफ्टर दे ट्राई टू सेल्फ इमोलेट एज प्रोटेस्टर्स erupted during a बंद इन मध्य प्रदेश पीथमपुरा a day after toxic waste from the Bhopal was moved from. तो क्या हुआ कि भोपाल से इस पीथमपुरा जगह ले जाया गया. तो पीथमपुरा जहां ले जाया गया वहां पीपल वर प्रोटेस्टिंग. 2 men actually self immolated, यानी अपने आप को आग लगा लिया प्रोटेस्ट में. So that is what it was in the news. Local and activists have been opposing the disposal of waste there as they fear it could pollute the environment. तो दूसरी जगह ले जाया गया पीथमपुरा, तो वहां people were unhappy. They believe that it might damage their environment and cause danger and all. तो उन लोगों को ये फियर था कि जो इधर लाया जा रहा है, हालांकि इसमें ये लिखा गया है, the chief minister has said that no one's life would be put in danger and the waste would be incinerated under the guidance of scientists. यानी जो वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा वो साइंटिस्ट की निगरानी में होगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने का नहीं. बट द पीपल वेर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग. तो ये न्यूज में था, सो दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड इट. ओके, तो ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आफ्टर 40 years द वेस्ट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो वेस्ट बचा हुआ था वो 40 साल बाद, ऑलमोस्ट 40 साल से भी 1-8 महीने ज्यादा हो गया, इसको रिमूव किया गया. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, लेट्स मूव ऑन टू एडिटोरियल. तो एडिटोरियल पेज नंबर 6 में था द लूमिंग थ्रेट्स टू फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक टेनेट्स. देखो करंटली आई होप यू आर अवेयर, अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा, दिस इज वेरी मच इन द न्यूज, वन नेशन वन इलेक्शन. ऑथर ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म पर अटैक है, मींस इट विल डैमेज और डिस्ट्रॉय और वीकन द कांसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. तो इसी पर उन्होंने आर्टिकल लिखा है. Okay, now first of all, can you please tell me the name of the committee related with one nation one election, या जिसको हम लोग कहते हैं simultaneous elections? Can you please tell me? Anyone? Yes, Mr. Ramnath Kovind committee. Yes, Priyanshi, Saifi, Ishan, you all are right. ठीक है, खैर. सो तो इस पर मैंने एक पहले तो सेपरेट वीडियो बनाया. अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन देखना चाहते हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना वन नेशन वन इलेक्शन करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट, ऐसे सर्च करोगे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसे मैंने बताया है. ओके, बट शॉर्ट में मैं बता देता हूँ. ठीक है, दूसरी चीज है कि इसका कौन सा अमेंडमेंट बिल है. तो दिस इज 129th अमेंडमेंट बिल. ये भी पास नहीं हुआ है, ये बिल है, 129th बिल इज देयर, इट इज येट टू बी पास्ड. ओके, नाउ व्हाट इज द इशू. तो इसमें है क्या, पहले ये समझते हैं. देखो वो क्यों बता रहे हैं कि ये वो बता ये रहे. देखो पहले क्या होता था, साइमल्टेनियस वन नेशन वन इलेक्शन का सिंपल मतलब क्या होगा कि जितने भी पार्लियामेंट के इलेक्शन है और जितने भी सारे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन सब एक साथ हो, ऑल शुड हैपन एट वन टाइम. यही ना है, सारे स्टेट्स में जितने भी 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में तो 2 ही जगह होता है, बाकी जितने भी 28 स्टेट्स हैं पार्लियामेंट है सब एक साथ इलेक्शन हो. तो बता रहे कि यस, इनिशियली जब 1952 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था फर्स्ट, उसी के पैरेलल लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता था. इनिशियली तो बाय डिफॉल्ट वन नेशन वन इलेक्शन था, बिकॉज इंडिया आजाद हुआ था तो सारे स्टेट्स में पार्लियामेंट में एक साथ इलेक्शन होगा.
बट दैट साइकिल स्टार्टेड ब्रेकिंग। जैसे 1959 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था केरला पर, हालांकि इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया था कि इट वाज परहैप्स अ मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। जब किसी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो वन नेशन वन इलेक्शन ब्रेक कर जाएगा ना, बिकॉज सारे स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन कराना और पार्लियामेंट में एक साथ इलेक्शन कराना वुड बी डिफिकल्ट। तो वही बता रहे, एक एग्जांपल दिया, फिर उन्होंने दे आर गिवन एग्जांपल्स एंड ऑल। खास के 1966 के बाद ना ये पूरा प्रोसेस ब्रेक कर गया साइमल्टेनियस इलेक्शन का। ओके, इसकी प्रॉब्लम साइमल्टेनियस इलेक्शन समझो ना क्या है, कि अगर मान ली सारे स्टेट्स में जैसे लोकसभा इलेक्शन, तो सारे स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन हो, कोई एक स्टेट्स में हंग असेंबली हो गया, या लोकसभा में हंग असेंबली हंग पार्लियामेंट हो गया, बाकी स्टेट्स में ठीक रहा, तब क्या होगा? सो दीज आर एक्चुअली द इश्यूज एंड ऑल। तो यही ऑथर ये कह रहे हैं कि इट माइट डाइल्यूट द फेडरलिज्म, बिकॉज उसमें ये होगा कि देखो, जब सेंटर पे इलेक्शन होता है लोकसभा में, तो नेशनल इशू पर होता है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इशू पर होता है। लेकिन जब दोनों मिलाकर के एक साथ कराया जाएगा इलेक्शन, देन इट माइट डाइल्यूट द स्टेट इशू, ऐसा हो सकता है, तो फेडरलिज्म पर इंपैक्ट हो, समथिंग लाइक दैट। तो कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ लोग बी बता रहे, कुछ लोग सी बता रहे। यस निगार फातिमा, यू आर राइट, एक्चुअली द राइट आंसर इज सी। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट केशव नंदा भारती केस में लाया गया था, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनुमरेट किया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एसआर बोमई केस में बाद में 1992 के आसपास की बात है, द सुप्रीम कोर्ट सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इनोवेटेड स्टार्टेड इन केशव नंदा भारती केस, but the Supreme Court declared that federalism is a part of basic structure in SR Bommai case somewhere around 91-92. So C is the right answer. ठीक है, तो यही बात है ना, फेडरलिज्म मतलब वही है कि हर स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन हो सकता नहीं हो, और जो दिल्ली का ऑल इंडिया इलेक्शन है, इट कैन नॉट हैपन दैट ऑल शुड हैपन एट वन टाइम। ठीक है, तो मैंने वैसे ये वाली क्लास में पूरा डिटेल बताया भी है, सो गो एंड वॉच इट, यू विल गेट टू नो। ठीक है, फिर देखो ये SR Bommai केस, दे हैव डिस्कस्ड इट, aims to restore the federal government and all, है ना, these are the things. फिर आर्टिकल 356 की जो बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर had said that it will be a dead letter, it will be used very rarely, but actually it is very much alive. सच्चाई ये कि काफी बार यूज किया जाता है, कभी कभी न्यूज कई बार ऐसा होता है कि मिसयूज भी किया गया, so that is why you should be knowing about it. Now again the author is talking about anti-defection law in this article. So which schedule deals with anti-defection law, and which constitutional amendment brought this? कोई बता सकता है? Yes, Tenme, Kenzo, Priyanshi, Goel, you both are right. 10th schedule. Yes, Nigar, Mannat. नहीं मन्नत, डी नहीं है, बी है। ठीक है, ईशान, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10th schedule talks about anti-defection law for 52nd amendment, right? Priyanshi, Negar, you both are right. 52nd amendment 1985 during the time of Rajiv Gandhi. ठीक है, तो 10th schedule डिस्कस करता है anti-defection law 52nd amendment 1985 during Rajiv Gandhi time. Yes, it is 52nd amendment. Yes, right. ओके, तो इसमें ये था कि अगर कोई डिफेक्शन करता है, मतलब इफ समवन जॉइंस वन पॉलिटिकल पार्टी, गेट सिलेक्टेड फ्रॉम दैट पार्टी एंड जॉइंस आफ्टर बिकमिंग एमपी और एमएलए, he or she joins another party, then he or she is supposed to leave the he or she is supposed to lose the seat. That's called as anti defection law, है ना? ठीक है, so these are the things you should be knowing. ठीक है, तो इसमें जितना डिस्कस देखो ये बता रहे हैं कि जैसे लोकसभा इलेक्शन 96 में हुआ, फिर 98 में हुआ, 99 में हुआ, कभी कभी ऐसा हुआ था कि हंग पार्लियामेंट हो जा रहा है या समथिंग, तो देखो 3 साल में 3 बार इलेक्शन हुआ, तो क्या सारे स्टेट्स में भी उसी साथ में इलेक्शन होने चाहिए? अगर 28 अगर मान लीजिए ऐसी फ्यूचर में नौबत आई कि 3 साल में 3 बार लोकसभा में इलेक्शन हो रहा है, बिकॉज किसी की गवर्नमेंट नहीं बन रही, सो शैल वी डू द सेम फॉर द एंटायर स्टेट्स? तो ये क्वेश्चन है कि अगर हम तो दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल इश्यूज आर देयर। हालांकि उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, द बेनिफिट्स आर दैट इफ देयर इज वन नेशन वन इलेक्शन, तो कम इलेक्शंस होंगे, तो जो गवर्नमेंट मशीनरी बिजी रहती है इलेक्शंस कराने में, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एटसेट्रा। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल करंटली द आर्ग्यूमेंट्स। फिर एक साइड में आर्टिकल थी लूजिंग मोमेंटम, जीएसटी रिसीट से रिलेटेड।
तो देखो सबसे पहले तो नंबर्स नहीं याद रखने, मैंने बताया, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज आप कुछ याद रखोगे, जब एग्जाम देने जाओगे 10 महीना बाद, दिसंबर में एग्जाम होगा, उसका कुछ और होगा। इतना डिटेल नहीं जाना, बट यू शुड नो समथिंग अबाउट इट कि आरबीआई होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, यू हैव बेसिक आइडिया, है ना। फिर वही बता रहे कि जीडीपी ग्रोथ कम हो गया लास्ट फिस्कल ईयर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर में, द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर में। सो दीस आर द थिंग्स। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, सो दैट दिस यू शुड बी नोइंग दैट यूनियन बजट विल बी प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी फरवरी, ठीक है। ओके, तो इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, एक दो चीज पता होनी चाहिए, जैसे ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में समवेयर, लेट मी शो। हाँ, कोर सेक्टर्स, तो देखो ये पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको चूज करके बता दे रहा हूँ। कोर इंडस्ट्रीज मींस दीज आर 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस फॉर रिफाइनिंग प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये आठों जब आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें 8 सेक्टर्स का 40.27% वेटेज होता है व्हेन वी कैलकुलेट, ठीक है। तो ये आपको बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग इट। The GSTs received for December based on transaction concluded in the November do not have much occur, etc. So these things you should be knowing it. Okay. Now, नीचे में आगे आर्टिकल है इंडिया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लीगल रिफॉर्म। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया नीड्स टू डील विद राइजिंग लेवल्स ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर, ये इशू है। तो एक्चुअली क्या है उसमें बता ये रहे हैं कि जैसे ये जमीन है, नीचे ग्राउंड वाटर होता है, ये तो पता होगा। तो लेट मी मेक इट विद ब्लू पेन, है ना। अभी ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी जगह वी हैव सीन नाइट्रेट, इनफैक्ट नाइट्रेट क्या आर्सेनिक भी कई जगह होता है। तो जैसे फिलहाल ये करेंटली दे आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रेट। सो ये बता ये रहे हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सिक्योरिटी हैज वेरी इंपॉर्टेंस, तो उन्होंने रिपोर्ट कई सारी रिलीज की, उसने बताया है कि वी हैव सीन एक्सेसिव नाइट्रेट इन द ग्राउंड वाटर। क्यों नुकसानदेह? ऑफ कोर्स यही ग्राउंड वाटर यूज किया था एग्रीकल्चर उगाने के लिए। दिस ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, this groundwater is used by human as well as animals, तो कैटल्स, तो सबको डैमेज करेगा, इंसान, जानवर, एग्रीकल्चर सब डैमेज होगा नाइट्रेट्स ज्यादा रहेगा तो। सो दैट इज व्हाट। Yes, Priyanshi Goel, you're right. Actually, 42nd Amendment added many things. You're right that it added words in preamble, it added the fundamental duties, it added the entire concept of tribunals, it added many new things. ठीक है, it added lot of things in DPSP also. ठीक है, खैर। So this translates to a little more than half of India 79 districts and all. खैर, तो इसमें यह है कि आपको एक बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब नाइट्रेट ज्यादा आता है वाटर में तो बीमारी कौन कौन सी होती है। एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बहुत फेमस होता है, कई बार न्यूज में रहता है। और दूसरा है ये वाला मीथेमोग्लोबिनिया, ठीक है। तो इसमें आरबीसी को डैमेज करता है और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है। दीज आर द टू डिजीज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ नाइट्रेट पोल्यूशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्राउंड वाटर, अब इस परसेंटेज नहीं याद रखना है, बट एक जस्ट आइडिया होना चाहिए। हाँ, तो राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में दिखा रहे हैं कि कई जगह 49, 48, 47% ऑफ द सैंपल्स रिपोर्टिंग बियॉन्ड द लिमिट, यानी कई जगह ऑलमोस्ट, जैसे राजस्थान में ऑलमोस्ट 49% सैंपल जब देखा गया तो उसके 49% में जो है लिमिट क्रॉस कर रहा था, जितना लिमिट होना चाहिए उससे ज्यादा। सो बेसिकली यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द परसेंटेज, बट हैव अ बेसिक आइडिया, ठीक है। सिमिलरली आपको एक दो चीज और पता होना चाहिए। एक एक्ट है वाटर एक्ट 1974 का, ठीक है। उसके अंदर में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वगैरह बनाया गया है टू इंश्योर दैट देयर शुड नॉट बी एनी वाटर पोल्यूशन। तो वही सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है या सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वगैरह जो होती है वो फाइंड आउट करती है कि कितना पोल्यूशन है एक्सेट्रा एंड ऑल, ठीक है। एक और अंदर में आर्टिकल थी, आई थिंक वर्ल्ड पेज में समवेयर, ये मैंने देखा था, फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर टू हैव गोवा कोची स्टॉप ओवर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एक शिप होती है व्हिच कैन कैरी एयरक्राफ्ट, तो शिप, ठीक है। तो फ्रांस की एक एयरक्राफ्ट कैरियर है एफएनएस चार्ल्स डी गॉल, ये शिप का नाम है। तो वो फ्रांस से आएगी और इंडिया में गोवा और कोची को, है ना, कोची केरला में, यहाँ पे आकर के डॉक भी करेगी, मतलब थोड़ा देर के लिए, ठीक है। और इट विल हैव राफेल जेट्स आल्सो, इसमें राफेल जेट्स लगे होंगे, एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ वरुणा एक्सरसाइज आल्सो, कहीं पे लिखा होगा इट विल टेक पार्ट इन 42nd एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुणा। तो वरुणा जो है वो नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है। सिमिलरली देयर आर अदर एक्सरसाइज आल्सो,
जैसे गरुदा एक्सरसाइज है फ्रांस और इंडिया के एयरफोर्स के बीच, ये वाला नेवल है, इन्हें नेवी के रिलेटेड। फिर शक्ति है मिलिट्री आर्मी के एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है। फिर एक फ्रिंजेक्स भी होता है। तो अभी फिलहाल जो एक्सरसाइज वरुणा, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। मेक नोट्स, मन्नत अगर आप इस साल अटेम्प्ट कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाना, बहुत लंबा नहीं, जो जो मैं कीवर्ड्स में बता रहा हूँ बस उतना, ठीक है। एट मैक्स 1 पेज से ज्यादा का नोट्स नहीं हो, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। Now, the next is important. Senior bureaucrat Faz Ahmad Kidwai is the new Director General of Civil Aviation, DGCA. Okay, so he's the senior IAS officer. Mr. Faz Ahmad Kidwai is the new DGCA of India. तो होता क्या, he is a 1996 batch IAS officer of Madhya Pradesh cadre. तो DGCA क्या होता है, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया. If you are watching our classes, this is a body under Ministry of Civil Aviation. And who is the minister? Please tell me. तो इस ये बॉडी, इट्स अ स्टैचुटरी बॉडी, मींस इट इज अ नाउ अंडर पार्लियामेंट लॉ, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर में. ओके, अब इसमें है क्या, दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ एयरलाइंस, है ना. कोई भी मान लो कि गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, या उससे रिलेटेड जितने भी सेफ्टी रेगुलेशन है, क्या सारी एयरलाइंस जो चल रही है उनका सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो दीस ऑल आर इंश्योर्ड बाय दिस डीजीसीए. Yes, Mr. K. Ram Mohan Naidu. Yes, Priyanshi and Ishan, you both are right. Minister of Civil Aviation, you have answered me correctly. ठीक है, तो इनके जो हेड है डीजीसीए के is actually Mr. Faz Ahmad Kidwai. You should be knowing it, है ना. फिर वर्ल्ड पेज में आर्टिकल था, साउथ कोरियन इन्वेस्टिगेटर्स अबैंडन अरेस्ट ऑफ एमपीज प्रेसिडेंट यून. अच्छा, ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था दैट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक यूल, इन्होंने क्या ये था ना कि ही वाज, इनका प्रेसिडेंटशिप ठीक चल रहा था लेकिन इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया. इन दिसंबर 3rd ही एक्चुअली डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ. आफ्टर 1980 में जो मार्शल लॉ आया था चून दू हुआन का, जो डिक्टेटर था, मिलिट्री डिक्टेटर, उसके बाद लाइक ऑलमोस्ट 44 इयर्स लेटर ही ब्रॉट द सेम थिंग. तो उसके बाद काफी हंगामा हो गया, काफी प्रोटेस्ट हुआ, एंड फाइनली ही हैड टू रिमूव दिस मार्शल लॉ. उसके बाद उनको इंपीचमेंट कर दिया गया, रिमूवल मोशन लाया गया एंड ऑल. ना उन पर बहुत सारे केस चल रहे हैं साउथ कोरिया में कि क्या इनको परमानेंटली रिमूव किया गया है कि नहीं. देन ही इज इशूइंग ही इज फेसिंग अ अरेस्ट वारंट आल्सो. तो अभी तो फिलहाल के लिए सस्पेंड है क्योंकि इन पर रिमूवल का मोशन इशू किया गया था पार्लियामेंट में. फिर हान डक्सो को बनाया गया था, ये भी कुछ दिन बाद रिमूव कर दिए गए. नाउ वी आर हैविंग अ न्यू प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट चोई सांग मोक. So these are the things that happen in South Korea. So this you should be knowing about it. Okay, फिर एक ये है साइड में आर्टिकल अबाउट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. तो इस पर मैंने वीडियो बनाया, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट. जस्ट सर्च इट, यू विल गेट दिस वीडियो एंड यू कैन वॉच इट. ठीक है, so this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.